health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia. In central China, a rapidly growing number of people were developing dry cough and fever before getting for some. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries with cases doubling within days. This virus is a severe acute respiratory syndrome related coronavirus 2 that causes a disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human being, and what should we all do? A virus is like a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even itself. It can only make more of itself by entering of a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection when people cough or if you touch someone who is ill, saying rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stone way deeper into the body. Its destination are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the broader cells of your body lining your organs and mucosa waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membrane to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple. Copy and reassemble. It fills up more and more copies of its original virus until it reaches a critical point and receives one final order. Self-destruct. The cells sort of melt away, releasing new corona particles ready to attack more cells. The number of infected cells grow exponentially. About after 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but the corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually become pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it pulls the immune system into fighting frenzy and sends more and more soldiers in than it should, wresting its own resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuffs, including our cells. So, as they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cell is they've got a frenzy called killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune systems arrive, the more damage they do and the more healthy lung tissue they kill. They might get so bad that they can cause permanent irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with the relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't even know the percentage because not all cases have been identified. Because it's safe to say that there's a lot more than flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died and with them, the lung protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia. Respiration becomes hard or even fails and patients need ventilators to survive.
Immune system has fought at all full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually it's even more dangerous than the flu itself. Today, the whole world is fighting it. Now, many Italians are taking to social media to warn the rest of the world to learn from their mistakes before it's too late. Italians from all backgrounds have urged others to stop underestimating a disease which is stretching northern Italy's healthcare system to the limit. These are some tweets written by the Italians who are warning the world to learn from their mistake before it's too late. I want to warn you so that you don't face what we are facing here. Italian blogger Marco Cartesegna told his 386,500 followers on Instagram. Please take advantage of our example and act now to prevent a huge crisis in your countries, he said. While Italy has been battling the outbreak for nearly a month and now has over 31,000 cases and more than 2,500 victims, other countries have only recently been forced into action. France and Spain have recently imposed lockdowns, while Belgium and Germany have ordered their citizens to stay at home. But others like Britain and US have faced criticism for dealing anti-coronavirus measures. Just like the Italy, US also did the same mistake. It underestimated the coronavirus and thus the results were shocking. Millions of people died. The situation became so worse that there was no space left even for the dead bodies to be buried. These are some of the main reasons for the extreme situation that occurred in USA due to the coronavirus havoc. As countries around the world grapple with the coronavirus, Taiwan may offer valuable lessons on how to curb its small island. Is just a few miles away from China, where the coronavirus had been originated, but still it was able to freeze the coronavirus cases. To just Taiwan teaches the world to be alert and proactive. In contrast to USA and Italy, it took quick and decisive decisions. Also used technology to detect and track cases. After securing its borders, Taiwan used technology to fight the virus. Temperature. As compared to these superpowers, India reasonably had done well and had taken quick and proactive decisions. It was on the night of 19th March when Indian government ordered a full close in the country till 31st March. All the remaining board exams were cancelled until and unless government gives other dates. संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए People knew that after this Janta curfew on 22nd of March, the lockdown would increase. So was it happened. All the people started stocking up their grocery items, vegetables, fruits and all this for emergency. आपके आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए, आपका आने वाला कुछ समय चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है। ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक निर्णय भी किए और अपने यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आइसोलेट करके
स्थिति को संभाला है और उसमें नागरिकों की भूमिका बहुत अहम रही है। भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के सामने, और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रयत्नशील देश है। In just one night, everything got changed. To prevent India from doing mistakes done by other countries, India had no stone unturned. All shops, markets, shopping malls, theatre and habitat centers were closed down and people were prevented from going outside. ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले। हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक हो। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। India has done reasonably well on this, as evident in the response to Prime Minister Narendra Modi's call to cheer healthcare workers for 5 minutes at 5 p.m. on March 22 and light a lamp or shine a torch after switching off all the lights for 9 minutes at 9 p.m. on 5 April. A collective action such as this connects people, and on both the 2 days, the whole country got united to salute all the Corona warriors for their work. कल भी हमने देखा रात को 9 बजे हम सब ने अनुभव किया है 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति के उस एक विराट रूप के हमने दर्शन किए, अनुभूति की। हर वर्ग, हर आयु के लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सभी ने मिलकर एकजुटता की इस ताकत को, उसका साक्षात्कार किया, उसका वंदन किया। the right reaction. ओवर रिएक्ट करो कोरोना के। ये मत सोचो कि डराओ मत, डरो। ये डर आने वाले बड़े डर को कम कर देगा। ओवर रिएक्शन इज द राइट रिएक्शन। दूसरी बात, जो घर पे बैठा है ना, वही असली देशभक्त है। देशभक्ति दिखानी है आप, देशभक्त बनना चाहते, घर पे चुपचाप दुबक के बैठे। समझ नहीं आ रही बात? एकदम घर पे बैठे, उसी को देशभक्ति बोलते हैं। इस समय कोई तलवार बंदूक लेके बाहर नहीं निकलना है, घर पे बैठो। देशभक्ति सबसे आसान तरीका है आज तक का देशभक्ति करना। देशभक्त बनना चाहते हो, चुप हो जाओ बिल्कुल। इसी कोरोना से आप बहुत भयंकर बाउंस बैक करके निकल सकते हो। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनो। पहली चीज, ये कोरोना फैलता क्यों है? सिंपल है। पहला, वो आदमी जो विदेश से आया था कोरोना लेके, वो कैरियर था। दूसरा, वो उन सब से मिला घर पे आकर के जो बेचारे उसके रिश्तेदार, इन दोनों को। तीसरा, वो जो रास्ते में जब लोगों से मिला जिनको बेचारों को मालूम भी नहीं, उनको भी कोरोना हो गया। चौथा, जिससे वो रास्ते में मिला, जब वो अपने घर पे गया और अपने रिश्तेदारों से मिला, अपने घर वालों से मिला, तो उनको भी कोरोना हो गया।
पहले दूसरे को पकड़ना आसान था, जो विदेश से आया उसको पकड़ो, उसके घर वालों को पकड़ो, उनको कंट्रोल कर लो, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। पर तीसरा जो इनक्यूबेशन पीरियड में था, जिस बेचारे को मालूम ही नहीं कि उसको कोरोना है और वो दुनिया भर में फैला रहा था, आज सोशल डिस्टेंसिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। ये आप कर्फ्यू नहीं है, केयर फॉर यू है। इसका सारा मुद्दा है उस तीसरे और चौथे को पकड़ना। एक तीसरा वो जिसको अनजाने में कोरोना हो गया, और चौथा वो जो उसके बेचारे घर पे बैठे थे, बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चे और उसकी धर्मपत्नी जो हाउसवाइफ थी, उनका कोई कसूर नहीं, उनको भी कोरोना हो गया। इस तीसरे और चौथे को पकड़ना है, और ये तब पकड़ में आएंगे जब 10 दिन 15 दिन चुपचाप सब घर में रहेंगे, सबके सिम्टम आ जाएंगे और घर में ही कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक तो ये गांव में नहीं पहुंचा, देहात में नहीं पहुंचा, केवल अमीरों की बीमारी है। अगर ये नीचे चला गया तो रिक्शे वाला वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, उसको तो बाहर आना है। पनवाड़ी को, प्रेस वाले को, सब्जी वाले को, किसी भी खोखे को, छोटे दुकानदार को, उसको तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, उसको तो बाहर जाना पड़ेगा। फिर ये बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी सोशल डिस्टेंसिंग, देशभक्ति के लिए थोड़े दिन चुपचाप घर में बैठ जाओ। आप क्या करो, तैयारी करो। ये रिसर्च का टाइम है आपके लिए। आज तक बोलते रहे टाइम में बैठ के भगवत गीता पढ़ो, आज तक भगवत गीता पढ़ते थे, आपको टाइम नहीं मिलता था। रीडिंग करो ना, 4 से 6 घंटे का टाइम निकालो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, जर्नलिंग करो, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करो, ब्लॉगिंग करो, कितना कुछ कर सकते हो। बूढ़े माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे थे ना, अब मिला नहीं टाइम आपको। व्हाट्सएप पे चिपके बैठे हो, बच्चों को बैठ के उनको गीता पढ़ाओ अपने साथ में। घर पे बैठो, देशभक्ति पे। मुसीबत के दिन जल्दी गुजर जाएंगे और एक बार फिर आजादी के चिराग झिलमिलाएंगे। कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए सब अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं। डोमिनोज ने 0 कॉन्टैक्ट डिलीवरी कर दिया, मैकडॉनल्ड्स ने डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बाइक और डिलीवरी बैग, इन सबको सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। स्टारबक्स अपने परिवार, अपने एम्प्लॉय, अपने पार्टनर्स का फ्री हेल्थ चेकअप कर रहा है। अमेजॉन, एप्पल, टाटा कहता है कि अगर किसी को पॉजिटिव हो गया, हमारे किसी एम्प्लॉय को कोरोना, तो उसको सारी छुट्टियां फ्री। बिट्टू टिक्की वाले के पास गया मैं, फरीदाबाद, सारे आंकड़े बदल गए। वही चाइना और साउथ कोरिया जिसमें सबसे ज्यादा नए केसेस आते थे, पूरा डिप मार गया। कारण क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, देश कंट्रोल हो गया। डिसिप्लिन ही एकमात्र कारण है। और दूसरी तरफ अब पृथ्वी के दूसरे हिस्से पे इटली, यूएस, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, सबसे ज्यादा पावरफुल देश सबसे ज्यादा बर्बादी के नजदीक आ गए इस समय। इटली के अंदर पूरा कोलैप्स कर चुका है। आज इटली में अगर कोई बूढ़ा पेशेंट और जवान पेशेंट आए तो बूढ़े को कहते हैं तुम मर जा, खाली जवान को ले लेते हैं। क्यों? उसकी रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए, कोरोना वायरस की मौत को ध्यान से समझिए। आप, ये आसान मौत नहीं है, बड़ी दर्दनाक मौत है। आप जो पेशेंट को कोई छूता नहीं है मरने के बाद में। पेशेंट जब एकदम डेथ के नजदीक होता है तो उसको प्लास्टिक की बॉडी में कवर कर देते हैं, डॉक्टर उसको छूते तक नहीं, ग्लव्स बाहर से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। आपके भगवान न करे अगर बच्चे को हो गया ना कोरोना वायरस, तो उसको ले जाएंगे, पहले तो आइसोलेट करेंगे, उसको आइसोलेशन के बाद क्वारंटाइन करने के बाद अगर तो वो ठीक हुआ, आप उससे पहले तो मिल नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते। अगर वो ठीक ना हुआ, भगवान न करे ऐसा हुआ, तो उसकी बॉडी तक आप, ये कोई आसान नहीं, ये बहुत देख रहे हैं आप इटली के अंदर लोगों को वापस भेज रही नहीं चाहिए, तुमको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। दुनिया के 5 सबसे अच्छे देश का हेल्थ केयर के मामले में आज बर्बाद हो गया। लेकिन भारतीय जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं ना, बहुत ही शर्म की बात। इतने चुटकुले तो पूरी दुनिया ने नहीं बनाए जितने भारत में लाशों की लाइन लग गई। आपको क्या लगता है ये लाशों की लाइन हो सकता है आपकी कॉलोनी में भी लग जाए, आपके परिवार में लग जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रेक द चेन। चलो कि जो भी कुछ छू रहे हो उसमें कोरोना है, उसमें कोरोना है। हर आदमी को, हर आइटम जो आपके घर में आ रही है, हर दरवाजा, हर एक कुंडी, हैंडल, गाड़ी का दरवाजा, चाबी, कुछ भी आपके हाथ में आ रहा है, पहले मान के चलो उसमें कोरोना है। अखबार आ रहा है, उसको लेना बंद कर दो। दूध की थैली आ रही है, पहले उसको बाहर से साबुन से धो। बिल्कुल, बाजार से कोई भी चिप्स लेके आए, हो सकता है अंदर ठीक हो, लेकिन बाहर तो वो कम से कम 1000 हाथों से लग के आया। आपने उसको खोला, उन्हीं हाथों से खा लिया, आपने कोरोना को निमंत्रण दे दिया। साबुन से धो बाहर के पैकेट को। तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। पहले समझो, भारत को ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला था, उसका फायदा हो गया। भारत को जो 21 दिन एक्स्ट्रा मिले दूसरे देशों के मुकाबले, पहले 40 दिन में भारत में केवल 50 केस आए, फिर ये तेज बढ़ा। अगले 5 दिन के अंदर वो केस 100 हो गए, अगले 3 दिन के अंदर वो 150 हो गए, उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर वो 200 हो गए, और इस समय टोटल 500 से ज्यादा हो चुका है। इसे बोलते हैं तीसरे स्टेज की तैयारी। हर 4 से 5 दिन के अंदर इंडिया में केसेस डबल हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, इसीलिए मोदी बोल रहे हैं रुक जा, घर में बैठ जा। मैं कह रहा हूं ये देश की सेवा का सबसे अच्छा तरीका है। अमेरिका के अंदर अब हर दूसरे दिन केस डबल हो रहे हैं। देहांत से बेहतर है एकांत।
क्या बोल रहा हूं मैं? देहांत से 130 करोड़ का देश है हमारा। कितना? 130 करोड़। हम कोई जर्मनी इटली फ्रांस नहीं है। इतने इतने देश है जर्मनी इटली। ये जर्मनी को तो हम कुंभ मेले में ऐसे ही नहला देते हैं। इतना सा जर्मनी है। 130 करोड़ में अगर दिक्कत आई, 30% लोगों को अगर कोरोना हो गया ना, तो 42 करोड़ हो गया 130 में से। और 42 करोड़ में से अगर उसका 20% को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो 8 करोड़ हो गया। और 8 करोड़ का 20% अगर उसको आईसीयू के अंदर या वेंटिलेटर में जाना पड़ा, 8 करोड़ का 20% 1 करोड़ 60 लाख। अपने पास 1 ही लाख वेंटिलेटर है। 1 करोड़ 60 लाख को 1 लाख वेंटिलेटर कैसे करोगे? 1 करोड़ 59 लाख लोगों का क्या होगा? सोल्यूशन है सोशल। इस समय पृथ्वी अंडर मेंटेनेंस है। घर पे बैठ जाओ, क्लोज्ड अंडर मेंटेनेंस। इसीलिए कह रहा हूं बैठे रहो अपनी कुटिया में, नहीं तो नजर आओगे लुटिया में। समझ रहे हो? हाँ, घड़े में नजर आओगे। आप सैनिटाइजर यूज करो, पर वो भी ध्यान से। अभी कुछ महिला सैनिटाइजर यूज करके वो गैस के अगर हाथ लगाया, बेचारी का हाथ जल गया। कम से कम प्रिवेंशन तो ध्यान से कर लो। आजकल लोग कह रहे हैं शराब पीने से कोरोना मर जाता है। शराब पीने से कोरोना मरेगा नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तेरा इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। इधर उधर सड़क पे घूम रहा चौधरी चरण सिंह बन रहा है। घर पे बैठ के देशभक्ति कर। आसान तरीका है देशभक्ति करने का। ये क्या? देखो कहीं चाचा चौधरी सड़क पे घूम रहे होंगे, उनको पकड़ के लगा दो, रोक दो उनको, बोलो घर में चल। अभी तो एफआईआर भी नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। पुलिस के पास भी टाइम नहीं है ऐसे लोगों के लिए एफआईआर करने के लिए। आजकल तो पुलिस वाले भी पीटना चालू हो गए। थूकेगा इंडिया तभी घर पे रुकेगा इंडिया। आज पुलिस वाले क्या करें? चिट्ठी दे देते हैं जी, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पे नहीं रहूंगा। एक बात बता रहा हूं भाई साहब, सरल सी बात है। ये समय कठिन हो सकता है। ये इस समय इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। इस समय $2 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑलरेडी लॉस कर चुकी है। पर कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट हो। 8-9 में जब सबसे बड़ा क्राइसिस आया था यूएस का, लेमन ब्रदर का, उस समय सबसे बड़े स्टार्टअप शुरू हुए थे। कुछ बुद्धिमान लोगों ने सबसे कठिन परिस्थिति में घर में रहकर सबसे बड़े स्टार्टअप शुरू किए। उबर उसी समय शुरू हुआ था, एयरबीएनबी, स्नैक, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, स्क्वायर, ये सब के सब तभी चालू हुए। स्टार्टअप फाउंडेड ड्यूरिंग द लास्ट रिसेशन वर द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द वर्ल्ड। आइकॉनिक स्टार्टअप अपना शुरू करो। यूज योर टाइम और लूज योर टाइम। घर पे रहो। हाँ, घर पे रहो। वर्क फ्रॉम। देश के राजा और देश की प्रजा ने कमाल करके दिखा दिया। मेजॉरिटी लोग अब घर से काम करके दिखा रहे हैं। बच्चे बिना जंक फूड के जीवन जी रहे हैं। अस्पताल जो 10 साल में बनता था 10 दिन में बन के दिखा दिया। करोड़ों रुपया गरीबों पे भी लगाया जा सकता है। लोग वेकेशन के बिना जिंदगी जी सकते हैं और हम लोग अमेरिका और यूरोप से ज्यादा अच्छा जी सकते हैं। यूरोप जिसने घुटने टेक दिए, अमेरिका जो दिशाहीन अनाथ बच्चे की तरह जिंदगी जी रहा है। आज पूरी दुनिया मान गई कि इंडिया ने कुछ काम करके दिखाया। वो जो लाठियां मार रहे पुलिस वाले, उसका यूरोप उसको इंडिया को बधाई दे रहा है कि यही करना चाहिए, हम नहीं कर पाए, इंडिया ने करके दिखाया। ऐसा इनोवेशन, ऐसा जुगाड़ कि हमारी रेलवे की पटरियों पे जाकर के प्लेटफॉर्म के सामने रेल के डब्बों को आईसीयू वार्ड बना दिया। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर की तरह उभरे हैं, जैसे अमेरिका में जब पूरा वैक्यूम था और उस समय अब्राहम लिंकन ने करके दिखाया। मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है, न हारना है। पर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बहुत कमाल के हैं हमारे देश में। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो अपनी जान लगा देते हैं सेवा करने के लिए। इनके सेवा की भावना बहुत तेज है। इस्कॉन ने कमाल कर दिया हमारे देश में। जानते हैं, इस्कॉन पहले ही 12-14 लाख बच्चों को, गरीब बच्चों को मिड डे मील खिलाया करता था। ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारे अरविंद केजरीवाल, इनकी टीम के अंदर डीसी है साउथ वेस्ट के राहुल सिंह, इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने मिलकर के इस्कॉन को फिर से साथ में लिया। आज 2 लाख लोगों को इस्कॉन दिल्ली में खाना खिला रहा है। पहला क्या है, ज्यादा मास्क चाहिए ताकि जरा टेस्ट हो सके। दूसरा, आपको नेजल स्वैब ज्यादा चाहिए ताकि आप उससे कलेक्ट कर सको वायरल सैंपल। नाक से कलेक्ट करते हैं वायरल सैंपल को। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्शन किट चाहिए जिसके अंदर से वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं सैंपल को टेस्ट करने के लिए। आपको चौथा केमिकल रीएजेंट चाहिए जिससे आप एक्चुअली टेस्ट करते हो। पांचवें, आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए जिससे आप उस टेस्ट को कर सकते हो। मीजल्स की तरह नहीं है ये कि मीजल्स जिंदगी में एक बार हो जाता है, दोबारा नहीं होता। ये कोरोना वायरस है, एक बार हो गया दोबारा भी हो सकता है। अगला पॉइंट, कोरोना क्राइसिस जो है ना, आने वाले समय में पानी को एक बड़ा नया क्राइसिस देने वाला है, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है। हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार आदमी जब हाथ धोता है तो 2 लीटर पानी उसका लग जाता है। क्यों? लोगों को आदत है नलका खुला छोड़ देने की। नलका खुला है, अपना साबुन से रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है, रगड़े जा रहा है। नलका खुला हुआ है, 2 लीटर पानी चला गया। अगर वो दिन में 10 बार भी हाथ धोता है तो उसका 20 लीटर पानी चला गया। अगर उसके परिवार में 5 लोग भी हैं तो उसका 100 लीटर पानी चला गया। और इस तरह से अगर 10 करोड़ लोग भी 100 लीटर पानी केवल 100 दिन तक भी इसको प्रैक्टिस करें तो 1 लाख करोड़ लीटर पानी चला गया। बड़ा सिंपल है सर। 1 लाख करोड़ लीटर पानी को हम कम करके बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे? जब आप साबुन से हाथ रगड़ रहे हो, नलका बंद कर दो। सुनिए, साबुन से हाथ रगड़ रहे हो, नलका बंद कर दो। वैसे भी नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 2021 तक 21 बड़े
शहरों के अंदर हमारे देश में पानी पूरी तरह खत्म होने वाला है। वैसे तो हाथ धोना जरूरी है, हाथ धोते रहो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अगला पॉइंट, सरकारी इमारतें, सरकारी स्कूलों का ज्यादा उपयोग किया जाए। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग पलायन कर रहे थे उनको वहीं ठहरा दे। इनको भी हॉस्पिटल बनाए, अस्थायी निवास बना दिया जाए ताकि आवश्यक वस्तुओं को वहीं पे उपलब्ध करा दे तो भी काम चल जाएगा। वैसे पहला लॉकडाउन कब हुआ था? गोवर्धन पर्वत में पहला लॉकडाउन हुआ था जब भगवान कृष्ण ने इंद्र से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे लोग आसपास इकट्ठे हो गए। 7 दिन 7 रात तक लोग वहीं पर रहे थे। ये तो 21 दिन का लॉकडाउन है, वो 7 दिन का था। पर वो क्यों खुश थे? क्योंकि उनके बीच में कृष्ण थे और कृष्ण का ज्ञान था, कृष्ण का कीर्तन था। आप भी उस ज्ञान को बढ़ाइए, आप भी उस कीर्तन को करिए इन 21 दिनों के अंदर। जो किया कभी ना वो आज करो ना। सोचो मिल गया है अच्छा बहाना, जो किया कभी ना आज करो ना। सोचो मिल गया है अच्छा बहाना, शुरू कर दो अपने ज्ञान को बढ़ाना। बड़ा सरल है। कोरोना वायरस के विरुद्ध इस लड़ाई में हम भी अपना सहयोग देते हुए अपने We know, sure, and it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are the two futures for a pandemic like corona, fast and slow. Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection, because there are no countermeasures in place to slow it down. So why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers gets too large, the healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers will get sick themselves, the capacity of healthcare system falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rise significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can turn into this to turn a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can be treatment and no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected, and second, not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. The soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what it is basically a layer of fat. Soap breaks the fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you just cut up some jalapenos and want to put in your contact lenses next. This means no hugging and no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for safety functions. From doctors to cashiers or police officers, you depend on all of them. They all depend on you to get not too sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restriction or actual orders to stay at home, just like in India. Quarantines are not great to experience and certainly not popular. But they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccines, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of us did this fun, but looks at the big picture, it is really small price to pay. The question of how a pandemic ends depends on how they start. If they start fast with a steep slope and they end badly. If they start slow with a not so steep slope, they end okay. And in the day and age, it really is in all of our hands. Yeah. गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाओ, गुजर जाइए। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल गई, मौत चेहरा बदल गई। माना हाथ लागी है, भयावह है के नाम पे। लोग दरवाजों पे रस्तों पे बैठे, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में गुजर जाएगा। सीधा जज्बा है,
मुश्किल बहुत है मगर कौन करता है? लंबी लड़ाई है न हारना, लंबी लड़ाई की लड़ाई के बावजूद भी जीतना, विजयी होकर के निकलना है। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, संकल्प भी एक ही है। महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत।